So this is life in India's coldest village, Dras, Ladakh, minus 60 degrees. I think the most I've ever experienced was like, I mean, max it would be like minus 20. Yeah, max is probably minus 20. There was one time, back in 2019, I think, I was working at the place where we cut trees and all that in rivers, right? And winter can get cold in France, but it's rare that it gets like, under minus 10. But there was one time, one morning, where like it was pure death. I mean, going to work, I think it was already like ultra cold. And I didn't really look at the, actually how cold it was or anything. But everybody was talking about how cold it was. And then we basically went to the job site, which was, in this valley. There's no sun. It's 9 a.m. We're like cutting trees, but, we're all just freezing. And it's the worst experience. And at one point, the boss looked inside the car, the truck, and it did say like minus 15 or something. And it was so cold that at some point it just decided that we will all just stop for today. Hello, react random video here. If you have any video, don't hesitate, share it. So, we basically went back to the, to the building, if you will, and that was it for the day, because again, like, we all had some vests and stuff like that, but nothing for like that level, because it's never that fucking cold, right? Like most of the time, the worst is like minus 5 or something. So that minus 15 felt like, even walking and sweating, it felt like this. Yeah. So that's the most cold I've experienced. Let's check out this video. एक ऐसी जगह जहां इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज में है। As I said, I think the coldest location in the world is in Siberia, right? Yakut, I think it's called. And it's pretty close to this. I mean, just 67 or something, I think is the max. इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जहां बसा है इंडिया का सबसे ठंडा विलेज द्रास। पर कितना ठंडा? हम सबको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाता है। ह्यूमन ब्लड बॉडी से बाहर -3 डिग्रीज पर जम जाता है। हमारे घर के फ्रिज में फ्रीजर का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक हो सकता है। डीप फ्रीजर में टेम्परेचर -20 तक हो सकता है। तो आप यहाँ का टेम्परेचर जानना चाहेंगे? यहाँ का अभी टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस। फेस पे पूरी बर्फ जम गई है। पर ये यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 1995 में द्रास में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। Okay, so it's not constantly at -60. Okay, I see. Clickbait. Fair enough. और तब से ही ये इंडिया की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। I know I say it all the time, but India is really cracked in terms of the biomes if we're talking into Minecraft world, right? You get like you have deserts, ice, coldest place. It's just, the amount of variety, you get almost everything, right? Every type of biome, if you will. पर जब इतना ठंडा होता है तो क्या होता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, वही सब जानने मैं आया हूँ इस खूबसूरत विलेज में। चारों तरफ आपको बर्फ देख के और ये सब देख के तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे कितना ठंडा है देख के। बट इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर बर्फ गिरती है, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता जितना यहाँ पे गिर जाता है। तो जब मैं द्रास मुझे बस इतना पता था कि ये इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये दिखती कैसी है, तो बस थोड़ा बहुत इमेजिन किया था। Which is crazy because Yakut is in Siberia and it's much more north in the world, right? मेरी उस इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है एक्चुअल में। इतनी सुंदर जगह है ये सच में, मतलब चारों तरफ इतने खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है पूरे चारों तरफ, जितने भी 360 डिग्रीज आप देख लो। और बीच में एक वैली टाइप का सा एरिया है जहाँ पर कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं घर के। तो जैसे कुछ एक साथ आपको 8-10 घर दिखेंगे, 8-10 घर दिखेंगे, फिर दिखेंगे 10-12 घर, फिर नदी के उस पार कुछ घर हैं। और इतनी खूबसूरत होने के बाद भी अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस नहीं है।
बस इसलिए फेमस है कि ये कोल्डेस्ट प्लेस है, बट ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। मतलब सच में ये तो मैं मान गया। Just wow. द्रास सिर्फ ठंडा है ये बात इसे खास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ 22,000 से भी ज्यादा लोग हैं। 22,000 people. तो इतनी पॉपुलेशन इस फ्रिज से भी ठंडी जगह में कैसे रहती है, वो जानने के लिए मैंने कुछ दिन यहीं गुजारने का फैसला किया, वो भी यहाँ की एक फैमिली के साथ। अहमद जी What I can think is why, you know what I mean? Like in some other video from this channel we've seen people being in very remote location was, for example, Monk, right? Which makes sense, but 22,000 people in this place? I mean, I guess it has a story and maybe your family have been here for a long time, but it's still like, yeah. I mean, it must be really hard to live. अपनी फैमिली के साथ इसी मड हाउस में रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी जगह में रहने के लिए कोई आम घर काफी नहीं है। Bricks, it looks like. यहाँ के ये मिट्टी, कंक्रीट और लकड़ी से बने मड हाउसेस बहुत ही सोच समझकर बनाए गए हैं, बल्कि इनमें ठंड तो कहाँ अंदर जाएगी, खुद अंदर जाने के लिए भी कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ के घरों में जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे करके ब्लैंकेट डाल के रखते हैं, ताकि अगर कभी दरवाज़ा खुले तो सीधे हवा एकदम अंदर आके उसकी गर्मी ना ख़त्म कर दे घर की। ये मेन गेट खुल के सीधे आप किसी कमरे में नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पे अब जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा आएगी उसे यहाँ किसी कॉरिडोर में रोकना है, और उसके बाद एक और कॉरिडोर आएगा, उसके बाद फिर एक और दरवाज़ा खुलेगा और फिर किचन और कमरे वगैरह आएंगे बाकी के। तो इतनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दरवाज़ों पे ठंडी हवा को रोकते हैं ये। सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, बल्कि यहाँ विंडोज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हवा तो यहाँ से भी आ सकती है। इसलिए विंटर्स में घर की सभी विंडोज़ को शीट या पन्नी लगाकर पूरी तरह सील कर दिया जाता है। Ceiling windows. और कुछ विंडोज़ जो साउथ की तरफ है, जहाँ से धूप आती है, उन्हें रोज़ दोपहर में खोल दिया जाता है। बल्कि इस घर के फ्लोर में भी कई इंसुलेशन की लेयर करी जाती है। मैं यहाँ पर ये नीचे कारपेट बिछा रखा पूरा, I still wonder, like, और उस what's the temperature inside? फॉर्म है ताकि नीचे ग्राउंड से भी ठंडक ना आए, क्योंकि ज़मीन भी ठंडी हो जाती है। पर इतना सब करना भी यहाँ की so बेरहम much. ठंड को रोकने के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ हर कमरे में There is, बुखारी है, जो कि एक तरह का हीटर होता है, जिसमें लकड़ी और गोबर जलाकर कमरे को Countdown, गर्म yeah. रखा जाता है, और साथ ही साथ खाना भी इस पर ही बन जाता है। और फिर भी अगर ठंड लगे तो ये लोग पिंक चाय। Can I get an explanation on that? I mean, maybe it's because the tree have nothing else to burn, right? Like, there isn't infinite trees or anything, yeah. But wouldn't it smell terrible? I mean, I guess you don't have a choice. पीते हैं, जो कि अभी बनाई जा रही है। ठंड में फ़ायदेमंद है। इसका टेस्ट कैसा है? बटर टी जैसा? हाँ, इसमें थोड़ा बटर रकम अच्छा, बटर भी है? नहीं लगाओ मैं। अच्छा अच्छा। क्या मज़ा आता है देखो। चाय को ऐसा पिंक कलर मिलता है बेकिंग सोडा डालने से। इसके टेस्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर यह हेल्दी होती है। Okay. You can tell it's not to enjoy it. और अब समय है जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ What's पानी up? जमा करने का, क्योंकि सारी पाइपलाइंस और स्ट्रीम्स का पानी जमा हुआ है, तो इन लोगों के पास पानी का सिर्फ एक जरिया बचा है, और वो है ज़मीन के अंदर से हैंडपंप के जरिए। I was gonna say like melt snow, but snow is not that clean, right? Even if you boil it, I don't know. बल्कि हैंडपंप को भी फॉर्म लगाकर जमने से बचाना पड़ता है। फिर पानी को डब्बे भर भर के अपने घर के अंदर लगे टैंक्स में जमा करते हैं। और इस हैंडपम्प से जो भी पानी निकला है ना, वो थोड़ी देर में यहाँ तक बस बहाए, और वो आगे भी देखो पूरा जम गया है। ये देखो, ये जमा हुआ है पूरा, Crazy. इतनी देर में पानी भी जम गया यहाँ पे।
कुछ सेकंड बस इतना सा रास्ता इसमें कवर किया, आप चल गए। और कुछ लोग यहाँ पर ही कपड़े भी धो लेते हैं। और कपड़े धोना तो ठीक है, पर सुखाने का क्या? तो अगर आप इंडिया की कोल्डेस्ट जगह में रह रहे हैं, I mean, I know clothes, like drying clothes outside in the cold, it doesn't take much for them to become like solid. I mean, I've seen it before many times, so I think like even -5 or 10 is more than enough, right? So at the temperature there, I mean, you know, you could use the piece of clothes as a weapon. तो आपके गीले कपड़ों में कुछ इस तरह से बर्फ जम जाएगी, जैसे हम जो कपड़े सुखाते हैं। But then, like, my question is, how does that work? Because it's not dry if it's frozen, because then if you bring it inside, it's gonna like get wet again. So, what's the logic of doing it outside? गीले कपड़े होते हैं, उसमें से पानी टपकता है, तो इन गीले कपड़ों से जो पानी की बूंदें निकली हैं वो सारी हवा में ही जम गई हैं। अगर मैं आपको इन कपड़ों को उठा के दिखाऊं ये कपड़े कैसे हैं, तो ये कपड़े पूरी तरह से देखो जमे हुए हैं। ये देखो, ये स्वेटर आप देख रहे हो, ये पूरा स्वेटर जमा हुआ है। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बर्फ़ पकड़ ली हो। ये पूरा स्वेटर कड़क हो चुका है, देखो ये देखो कड़क एकदम, ये पूरा कड़क हो गया। अगर मैं इसको मारूं, ये देखो कड़क कपड़े। ये है द्रास की सर्दियाँ। आप सोचो कितना ठंडा एरिया है ये। Crazy. बर्फ से भरी ये वादियाँ खूबसूरत तो लगती हैं, पर तब तक ही जब तक इस बर्फ को घंटों लगा के साफ न करना पड़े। Every तो day. ये आपके घर की छत है ना? घर की छत है ये। घर की छत पे इतनी बर्फ, पता ही नहीं चल रहा छत है। ऐसा लग रहा ज़मीन है। सबसे ज़्यादा ठंड पड़ा था सर यहाँ पर 1995-96 में। अच्छा। उस टाइम बोलता है हमारे बाप दादे लोग बोलता है कि -50 अबव या 50 या -60 तक गया था बोलता है। -50 -50-60 तक गया था बोलता है सर। तब उस टाइम जो गाय का मतलब कमरा है ना सर, उसमें गाय उसे दीवार के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। किसके साथ चिपक कर? दीवार। अच्छा। And I was watching another video recently about in the US in the 60s, I think, there was like a very freak weather incident where there was a thunderstorm, and in a little town during that thunderstorm, temperature basically went from like 20 degrees to 60 or something in just a few minutes, and it stayed like that for a few hours or something. It was like a crazy temperature switch from a thunderstorm. It's really interesting what the nature can do. दीवार के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। पर ऐसी ठंड के बाद भी लोगों को यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। I mean, I guess if you're used to it, it's like, you know, as an outsider, I look at it and I'm like, there's no way, right? But if you were born here and that's all you know, and you haven't been to the big cities or something, right? Or like to places that are easier to live without this level of cold, maybe you don't think about it, right? I mean, you're just used to it. Yeah. I can't imagine though, like moving here after having lived, you know, like more down into India, like in more, be it hotter or like more mild weathered place. हमें एक फख्र लगता है कि हम सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस के लिए। हाँ वही। हमें एक फख्र है। फक्र तो मुझे भी हुआ अपने यहाँ आने के डिसीजन पर, जब कुछ ही देर में ये खूबसूरत स्नोफॉल दिखी। You could build an house out of frozen clothes. तो अभी द्रास में बड़ी खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में डस्ट हो, इतनी फाइन है यहाँ की बर्फ। It's really an impressive looking place. I can't deny it. तो द्रास में कुछ ऐसी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पर अभी सब कुछ वाइट हो गया है पूरी तरह से। आसमान, ज़मीन और घर भी यहाँ के पूरे वाइट हो गए हैं, इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। यहाँ की स्नो बहुत ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है, तो
आप जैसे हटाओगे ऐसे तो करके ये भीगती नहीं है, ये आपका हाथ वाथ कुछ भी नहीं भीगता, ये पाउडर की तरह हट जाती है बस, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए थोड़ी पाउडर्ड फॉर्म की बर्फ़ है, एकदम रुई जैसी। Makes you want to eat यहाँ it. से पूरा गांव दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, छोटे छोटे से घर पूरे जो एकदम वाइट, और फ्रॉस्ट नहीं होता जो पूरा धुआं है जो सर्दी का, उसमें लिपटे हुए हैं, और कहीं कहीं लाइट्स जलती हुई दिख रही है। It's really getting an atmosphere, yeah. स्नोफॉल चाहे आपने कितनी बार भी देखी हो, पर हर बार खुशी पहली बार जैसी ही मिलती है, और इसे देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो जब यहाँ पर इतनी ठंड है तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ सो कैसे रहा हूँ। तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पर मड हाउस में, एक रूम है होम स्टे के अंदर, जिसमें यहाँ बीच में बुखारी लगी हुई है और अभी वो चल रही है। उसके बाद भी एक ब्लैंकेट ये लगाया हुआ है मैंने, एक ब्लैंकेट डबल किया हुआ है, I would sleep fully clothed, yeah. मोटी रजाई है यहाँ की, और फिर अगर इसके बाद भी ठंड लगती है तो ये है हीटिंग पैड। तो कुछ यहाँ ऐसे रात में जब बाहर इतना ठंडा Thank you टेम्परेचर for the suggestion. तो I'll कुछ इस take a तरह look. सोया जाता है। तो चलो सो जाता हूँ, Hello, Clément. फिर सुबह Good. बहुत How ठंड में about you? बाहर जाना है यार, सनराइज का शूट करना है। Myself, like, I was sleeping underwear and a shirt, basically. But in a place like this, where it's like minus 30, 40 outside, yeah. I think I would sleep with my clothes on. I mean, I think so. I can't imagine. Doing fine. सुबह की शुरुआत होती है गाय का दूध निकालने से, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ गुजारने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ गांव में हर घर में लोग डेयरी के सामान की ज़रूरत के लिए गाय और अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। And chicken. और क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ लंबी होती हैं तो हर ज़रूरत का सामान गर्मी से ही जमा करना पड़ता है, जैसे कि बुखारी जलाने के लिए गोबर और लकड़ियाँ, वो भी पूरा एक एक कमरा भर के, जिसमें एक कमरे में लकड़ियाँ और एक कमरे में गोबर जमा करना पड़ता है। You know, maybe I'm stupid. Maybe cow dung doesn't smell that bad. I was thinking that cow dung is like horse, you know, but maybe not. Maybe cow dung isn't that bad. Maybe. I still can't imagine like being in a room where you're burning cow dung to heat the room, but maybe it's not that bad. ये जो आपकी गाय है उसी का ही गोबर है? हाँ, इसी का गोबर है और पहाड़ से भी लाता है। पहाड़ से भी लाते हैं? अच्छा, कितने महीने लग जाते हैं इतना गोबर जमा करने में? जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा, सितंबर तक पूरी गर्मी तक मतलब जमा करते हैं। जमा। और गर्मी में उगा अनाज, जैसे कि यहाँ उगने वाला जौ या बारले, उसे भी एक कमरे में जमा करते हैं। इसीलिए ही यहाँ बेडरूम से ज़्यादा स्टोर रूम होते हैं। बल्कि अपने जानवरों को भी सर्दी से बचाने के लिए उन्हें भी घर के अंदर ही रखना पड़ता है। I was gonna say like, are chicken and cow that good with like minus 30, 40 degree weather? No, they have to be inside too. Fair enough. I mean, earlier in the video there was some like very hairy cow, which I think are different. So maybe those are good at being outside, yeah. But the normal cows, I don't think they're that good with that cold weather. That's good. क्या नाम रखा है कुछ इसका? इसका लुलू। लुलू? वही होते हैं ना सबके। तो इसे बाहर नहीं निकालते हैं? हाँ, बाहर नहीं निकलते ना, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे निकलते हैं। देखो It's a good dog. ये यहाँ की एक और ख़ास चीज़ जो कि है ड्राई टॉयलेट। पाइपलाइन तो यहाँ जम जाती है और साथ ही साथ ड्रेन या नाली भी जम जाती है, तो इसलिए ये लोग ड्राई टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो बाद में खाद में भी काम आता है। जमा हुआ टॉयलेट खूबसूरत नहीं लगता, पर एक चीज़ है जो जमी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे कि फ्रोज़न वाटरफॉल।
Trek to the frozen बस waterfall. फिर उसी फ्रोजन वाटरफॉल का पता करके मैं निकल गया हूँ उसको देखने, पर उस तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। Frozen bridge. तो अभी वाला जो सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सालों पुराना है और ये अभी एक तरह से अबेंडन हो चुका है। इसको कोई यूज़ नहीं करता, पर अभी मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आगे फ्रोज़न वाटरफॉल तक जाना है। इस ब्रिज की सच्चाई ये है कि अगर आप इस पे चलोगे तो इसमें बीच बीच में कहीं कहीं इतने बड़े बड़े गैप्स बने हैं जिसमें से एक आदमी आराम से निकल जाएगा और नीचे जाके गिरेगा। At the very least. बट इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको वो गैप्स दिखेंगे नहीं क्योंकि वो गैप्स बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो जैसे कि आप ये वाला छेद देख सकते हैं, देखो मैं इसे अगर पैर से हटाकर आपको दिखाऊं तो ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। वो अभी दिख भी नहीं रहा था कि इतना बड़ा गैप है बीच में। अभी मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर गैस करना है कि गैप्स कहाँ कहाँ पर है I mean, it's not that high. और इसे You'll पूरा be पार fine. करना Huh? है यार। यही एक रास्ता है। तो कभी टूटा ब्रिज और कभी झाड़ियां पार करके अब पार करनी थी नदी। तो आप जितना भी देख रहे हैं पूरा पीछे ये नदी है जो पूरी तरह से फ्रोज़न है और इस नदी को फॉलो करते करते आप एक फ्रोज़न वाटरफॉल की तरफ पहुंचोगे और आप देख रहे हो कि पूरी बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे ठोक ठोक के आके पड़ना पड़ रहा है, वरना ये देखो ऐसे मजे Yeah, से स्लाइड but the ice is not that break. और लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं आखिर पहुंच गया वाटरफॉल तक। वो रहा फ्रोज़न वाटरफॉल। Okay, that is absolutely frozen, yeah. There's not one drop of water coming out. बड़ा मुश्किल था यहाँ तक आना, पर बहुत ही सुंदर है यार ये वाटरफॉल। इसे देखना इतना अनोखा था कि ऐसा लगा ये नेचर ही है जो सिर्फ जमे हुए पानी को भी इतना खूबसूरत बना सकती है। It's pretty cool, yeah. Makes you want to climb it. बल्कि इसकी बारीकियां देखकर लगता ही नहीं कि ये अपने आप बना हो, और इसकी यही बात इसे और खूबसूरत बनाती है। वाटरफॉल का बहता हुआ पानी तो जमा हुआ देख लिया, पर यहाँ की ठंड को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी भी जमा Boiling सकती है। water. वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो साइंस कहती है कि जब बॉइलिंग वाटर को Oh, yeah, yeah. -26 डिग्री सेल्सियस से ठंडे टेम्परेचर की हवा में फेंको तो पानी हवा में ही आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है, और ऐसा होता है I've seen a video like that की before. वजह से। Yeah. और ऐसा करते हुए आप लोगों को एंटार्क्टिका या अर्थ के पोल्स वाली जगह पर देखेंगे, पर मैं आपको अपने इंडिया में ही ऐसा करके दिखाता हूँ। पर ये जितना आसान दिखता है उतना नहीं होता, क्योंकि कभी टेम्परेचर सही नहीं होता तो कभी फेंकने का तरीका, या कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी वो रिकॉर्ड सही से नहीं होता। पर मैं कहाँ रुकने वाला था, रोज सुबह उठकर मैंने पूरी कोशिश करी। Every day. फाइनली इस बार वो परफेक्ट शॉट मिल ही गया। जो द्रास जैसी ठंडी जगह पर ही हो सकता है, इस बॉइलिंग वाटर को हवा में उछाल के। Oh yeah, okay. That's the perfect shot. With the sun in the background now. बादल देख रहे हो हमारा, वाह। That's out. तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है That's out. कि जो बॉइलिंग वाटर है उसको हवा में उछालते ही वो पूरा फ्रीज हो जाता है। पर सोचने वाली बात In तो ये France, can you do है that? कि इतनी ठंड I होने don't think it ever gets that cold. वजह क्या I है। was thinking about it at the beginning of the video, but the coldest I remember is like -15, maybe close to -20 one time, but वजह सिर्फ एक नहीं है, I don't think it's cold enough. काफी सारी चीजें साथ मिलकर द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस बनाती हैं, जिसमें से एक है द्रास की ये खास लोकेशन, जो कि लगभग 10,500 फीट की हाइट पर है, वो भी ज़ांस्कर रेंज के इन
ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे। और ये पहाड़ साइबेरिया से आती ज़्यादातर कोल्ड विंड्स को यहीं पर रोक लेते Siberian wind. हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही कम बारिश होती है, बल्कि साल का ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन सर्दी में ही हो जाता है, वो भी स्नोफॉल की फॉर्म में, यहाँ के ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से। Okay. और इतनी स्नोफॉल होने से यहाँ साल के ज़्यादातर टाइम ज़मीन बर्फ से ही Yes, so they have no break from the cold. जिससे सूरज की गर्मी भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन सब वजहों की वजह से बनता है इंडिया का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। I can't imagine living in a place that's always cold. Oh, it's, you know, अब यहाँ I इतनी like a ठंड mix. होती है तो उसका कुछ असर यहाँ के बच्चों के खेल पर भी पड़ता है। जैसे हम Ice hockey. गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ की गलियों Sure. में I live in Normandy right now, at the ice top of hockey. France. आइस हॉकी खेल रहे हो? खेलो खेलो। फिर बस बच्चों का थोड़ा साथ मैंने भी दे दिया। हम दोनों Ice hockey, basically. तो गली का आइस हॉकी खेलने के बाद मुझे मिला यहाँ Every time there's any shot, like the background looks so amazing. It's crazy. इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ ना खेल रुक रहा था और ना ही पढ़ाई। अभी तो स्कूल बंद है, तो यहाँ पे ट्यूशन चलता है स्कूल जब बंद होता है तो। अच्छा अच्छा, पढ़ाई चलती रहती है मतलब। चलती रहती है ताकि ये भूले ना। हाँ विंटर में भूल जाते सारी चीज़ जो पढ़ा। अच्छा। बच्चों को इतने लगन से पढ़ते देख ये तो साफ है कि द्रास का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। पर The द्रास future is का cold. पास्ट इतना अच्छा नहीं था। Yeah. 1999 में हुए कारगिल वॉर का द्रास की जमीन ही गवाह थी, जिसमें शहीद हुए जवानों की मेमोरी में Was it यहाँ between China and वॉर मेमोरियल बनाया गया, India, I think? जिसको देखने का आज मुझे भी मौका मिला। और यहाँ पर एक हमारा जो फाइटर जेट है वो भी लगा हुआ है, जो इसमें यूज़ हुआ है कारगिल वॉर के टाइम पे, वो भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। और जितनी भी तोप और गन्स वगैरह यूज़ हुई हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई हैं इन लोगों ने। और ये एक्चुअल है, जो एक्चुअल उस मोमेंट पे यूज़ हुई हैं, ये कोई उनका रेप्लिका नहीं है। Even artillery stuff. Yeah. अभी तक हमारे कारगिल वॉर और कारगिल में जितने भी वॉर्स हुए हैं उनमें जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब के वो मेमोरियल बनाए हुए हैं। लगभग 397 सोल्जर्स की मेमोरियल है यहाँ पर। और इतने ज़्यादा जवान मतलब शहीद हुए हैं सिर्फ इस ज़मीन को हासिल करने के लिए। और बेशक यहाँ पर अभी बहुत शांति फील हो रही है, बहुत पीस है, बस तिरंगों के लहराने Crazy there was even fighting in such a place, you know. चारों तरफ। पर ये Second जो यहाँ coldest पर place on महसूस हो Earth. रहा है, उसके पीछे की जो And people कहानी are है still वो fighting. बहुत ही शोर भरी है। और यहाँ पर आकर वो आपको शांति के साथ साथ वो चीज़ महसूस होगी। कारगिल मेमोरियल से कुछ दूर ही है द्रास की एक और खूबसूरत जगह मुश्को वैली। Man, this landscape, insane. It's all like a painting. मुश्को वैली छुपे हुए द्रास का भी छुपा हुआ कोना था। कुछ खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत घर और यहाँ के कुछ खूबसूरत लोग। और यहाँ मुझे बड़े हंसमुख बच्चे भी मिले। इनका फोटो लेते हुए जब इनकी फैमिली ने देखा तो उन्होंने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। और इस ठंड में तो मैं चाय के लिए मना करने से रहा, पर इस शीना फैमिली ने सिर्फ चाय नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। मैं सामने बना के देंगे खाओगे। चलो आप लोग भी खाइए, गिफ्ट उठाइए। आप लोग, मैं ऐसा अकेले खाऊं अच्छी लगे मेरे को। जिसमें से एक था सत्तू और घी, जो यहाँ की लोकल डिश है। I don't know any of it. बहुत बढ़िया, बहुत
बहुत बढ़िया। आपका तो सब एकदम वही होता है ना, ऑर्गेनिक नेचुरल, सब उगाते हो खुद से ही। नहीं बस बस और नहीं नहीं बस थैंक यू, बस बस। चाय का सोचकर आया और फिर पूरा खाना खा के मैंने इस फैमिली को अलविदा किया। That's nice. बाय। It looks cozy but cold. इंडिया के Obviously. सबसे ठंडे विलेज में भी लोग बहुत ही नरम स्वभाव के थे और द्रास की आने I mean, I feel like it makes sense. Yeah, right. It's like this kind of extreme weather place. No one survives alone, so everybody has to be kind of nice and always helping each other because the level of survival you need to have here is kind of crazy. वाली सर्दियों में टेम्परेचर चाहे कितना ही गिरता जाए, पर यहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। आप लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं हैंडपंप से, तो ये सारे डब्बे आपके, आप भर के ले जाएंगे खुद ये वापस घर? अच्छा। जहाँ हमने शिकायतों से अपना शहर भर दिया है, वहीं ये लोग सुविधाओं से खाली घरों को भी बिना किसी शिकायत के गर्म रखना जानते हैं। और इन्होंने ये It's a little bit साबित saying कर to दिया complain to the government. कि जीने के लिए सिर्फ सही सुविधाएं नहीं, सही स्वभाव भी जरूरी है। और अगर हम भी सही स्वभाव से चले तो मुश्किल से मुश्किल मौसम भी हंसते हंसते गुजार सकते हैं। As I said, I mean, if you grow up here from the beginning, it's like, I guess you're just used to it, and it maybe doesn't feel extreme, right? Because you don't know anything else. मेरी तरफ वीडियोस बनाने में या YouTube फिल्म मेकिंग में This is probably like Canada. Okay, well, that's a good video. I mean, really interesting place. It's impressive that there's 20,000 people living there, right? It's the most I can say. And it's also insane the variety of landscape in India, right? I mean, from literal desert to super hot place to the second coldest place on earth. I mean, alright. So yeah, really good video. I'm quite impressed with this.